Hello everyone, this is Raman Mittal welcoming you all back to another session of Most Street Current Affairs. The date of the day is 3rd of February 2021 and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exam's perspective. You already know that our idea here in this particular series is not only to understand current affairs but to develop a skill so that we can use these articles in the examination and get an edge over others. Let us begin this particular session. And to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription first. If you take an academy subscription, you get unlimited access to all the educators, their courses, their classes on an academy's platform. All the classes are live. That means on the real-time manner, you get an opportunity to engage and interact with the faculty. You also get live test and doubt clearing sessions at regular intervals जो ensure करते हैं कि आपका proper assessment होता रहे और कोई भी gray area ना बचे आपका during this journey of civil services examination. You can easily take an academy's subscription by downloading the Unacademy's learning app and installing it on a mobile phone. After this, you will be getting two options of the subscription. First would be plus subscription and second would be iconic subscription. अगर आप plus subscription choose करते हैं तो इसमें multiple duration plans हैं ranging from 1 month to 36 months. You can opt for the annual plus subscription plan which will cost you 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN and then the final price would be reduced to 44,550 rupees. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये एज इट हैज़ गॉट सम एडिशनल बेनिफिट्स लाइक दैट ऑफ पर्सनल कोच मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड सो ऑन. इसका एनुअल प्राइस आपको कॉस्ट करेगा 69,500 rupees ka. Here as well you can avail extra 10% off by applying my code NAMAN NAMAN and then the final price would be reduced to 62,550 rupees. ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आप चूज कर सकते हैं. इसमें मल्टीपल प्लान्स हैं, मल्टीपल ड्यूरेशंस हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ टू 36 मंथ्स. अगर आप एनुअल यहाँ पे प्लान चूज करते हैं इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 27,500 रुपीज़ की. आफ्टर अप्लाइंग माई कोड द फाइनल कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाई 10% and the final cost would be then 24,750 rupees. अनअकैडमी कॉम्बैट जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज अभी आने वाली है डेडिकेटेड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑन द 7th of February. आप सब लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. And this provides you an opportunity to not only assess yourself at the pan India level but also win few of the exciting prizes if you secure your rank within 150 top 150 में अगर आपकी रैंक आती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. कुछ कॉम्बो ऑफर्स हैं जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है एट स्पेशल डिस्काउंट. लाइक अगर आप आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल चूज करते हैं सो इट विल कॉस्ट यू 88,705 रुपीज़. इसमें आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग माई कोड. तो फाइनल प्राइस जो है इस कॉम्बो प्लान की दैट इज आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल ये आपको पड़ती है अराउंड 80,000 रुपीज़ की. और अगर आप प्लस प्लस ऑप्शनल लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन सो दिस इज 70,000 एंड हियर एज वेल यू कैन अवेल 10% ऑफ बाय अप्लाइंग माई कोड और जो फाइनल प्राइस आएगी वो ऑलमोस्ट 63,000 के आसपास आएगी. तो अगर आपको ऑप्शनल और जीएस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है तो आप ये कॉम्बो प्लान्स भी चूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव. लेट अस कम ऑन टू दी आर्टिकल्स ऑफ द डे. जो पहला आर्टिकल है आज हमारा इट टॉक्स अबाउट द ECT project which was accorded to India through a tripartite agreement done between India, Japan and Sri Lanka. तो इसके रिस्पेक्ट में हमने कुछ टाइम पहले भी बात करी थी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या मेजर इरिटेंट्स हैं. तो उन मेजर इरिटेंट्स को जब हम लिस्ट आउट कर रहे थे सो देयर वी टॉक्ड अबाउट फ्यू ऑफ द मेजर इरिटेंट्स. लाइक फर्स्ट इरिटेंट वाज द चाइना मेकिंग इनरोड्स इनटू श्रीलंका जहाँ पे हमने मेजर प्रोजेक्ट्स डेवलप करे थे लाइक दैट ऑफ Humban Tota which China got on lease for 99 years, Southern Expressway that China is developing. China is also developing Port City. Then China is developing, not China, Chinese company is developing a port at the Colombo. So these were some of the major Chinese projects which definitely go against the interest of India as China through these projects is making significant inroads into its own neighborhood. तो ये एक मेजर इरिटेंट बनता है.
इसके साथ साथ चाइना हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस श्रीलंका एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी विच इज़ क्लियरली manifested through the points like Sri Lanka managed to refuse the grant of the US worth $450 million under the MCC, that is Millennium Corporation Challenge. Apart from this, Sri Lanka also withdrew unilaterally a project from Japan which was a light rail corridor project. Previously it was given to Japan, लेकिन चाइना ने इसको यूनिलैटरली वापस ले लिया. सेकेंड मेजर इरिटेंट हमने डिस्कस करा था that 13th amendment and stability of the same. So now we do not have much idea or clarity, you can say, whether Sri Lanka is going to pursue with the 13th amendment which was a result of the Indo-Sri Lankan Accord of 1987 or not, right? तो इसके अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एयर डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी इन द श्रीलंका दैट वी नीड टू डू अवे विद द 13th अमेंडमेंट. 13th अमेंडमेंट में बेसिकली जो 9 प्रोविंसेस हैं श्रीलंका को उनमें फर्दर ऑटोनॉमी देने की बात करी थी, लाइक वी हैव इन आवर ओन स्टेट्स दैट स्टेट्स कैन गवर्न देमसेल्व्स, दे हैव देयर ओन फिस्कल लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी. सो वी एंश्योर्ड 13th अमेंडमेंट in the constitution of Sri Lanka so that the rights of the minority Tamils could be प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड. लेकिन अब इसके अगेंस्ट भी एयर काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है. थर्ड मेजर इरिटेंट वॉज फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट जो हमने देखा था, एंड इट बेसिकली came into the main picture after 1974 and 1976 एग्रीमेंट्स जिसके थ्रू हमने कच्छतीवू आइलैंड सीड कर दिया था तो श्रीलंका. एंड 1990s में देन वी केम अप विद द मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स जिसके कारण फिर फिशरीज रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सेसिवली डिप्लीट होने लगे. आर फिशरमैन स्टार्टेड टू क्रॉस द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड दे वर देन ईदर कॉट और इवन शॉट डेड बाय द श्रीलंकन नेवी. तो ये भी एक मेजर इशू, एक मेजर इरिटेंट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. द फोर्थ एंड द लास्ट मेजर इरिटेंट दैट वी डिस्कस्ड was with respect to the investment stability of India, or you can say the investment done by India, the stability of the same. So here we talked about ECT project. Now this ECT project has again come into the news for the bad reasons that again Sri Lanka has unilaterally decided to do away with this project and go with the development of ECT as a 100% wholly subsidiary of the Sri Lanka Port Development Authority SLPA. तो previously ये decide हुआ था in the 2019 एक tripartite agreement के through कि India and Japan will together develop ECT East Container Terminal जो कोलंबो पोर्ट पे है. These two countries will develop this container terminal along with Sri Lanka, and this project will be facilitated through the joint venture kind of a mechanism. तो यहाँ पे 49% जो स्टेक होगा वो इन दो कंट्रीज के पास होगा जो भी जॉइंट वेंचर ये क्रिएट करते हैं, एंड 51% स्टेक जो होगा वो SLPA का होगा, श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी का होगा. बट देन देयर वर large scale protest seen witnessed in the past 1 year in the Sri Lanka, mainly by the trade unions, port workers कि हमें फॉरेन कंपनी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जबकि चाइना ऑलरेडी काफ़ी हद तक वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है. मैंने आपको बताया पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है, चाइनीज़ कंपनी ऑलरेडी कोलंबो पोर्ट को डेवलप कर रही है, हम्बन टोटा वहाँ पे लीज पे है फॉर 99 years. So when these kind of criticisms and protests are done in the Sri Lanka, then definitely they are little bit meaningless, because यहाँ पे you fail to find the genuinity or the cause, the actual cause behind the protest. They are clearly seen to be dictated by the China. So finally Sri Lanka has decided that we are not gonna go further with this project, and the project now will be done completely by the SLPA. अब यहाँ पे इंडिया और जापान को श्रीलंका ने ऑफर किया है कि आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट तो आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं करने को मिलेगा. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज you can go for the development of west container terminal, and here what we can offer you is you can have the ownership or the stakeholder
अराउंड 85%। तो आप 85% यहाँ पे स्टेक होल्डरशिप ले सकते हैं और आप डेवलप कर सकते हैं वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को, एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इक्वलेंट टू द ECT. But please try to understand the strategic significance of ECT from the India's perspective. ECT handles mainly the business of transshipment, and of all the business of transshipment, 70% of the transshipment is related to India. So that is why it was important very much for India. इसलिए इंडिया यहाँ पे इतना एग्रेसिवली परस्यू कर रहा था. और ऐसा नहीं है कि इंडिया का ये पहला स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है इन द श्रीलंका. बैक इन 2016 वी हैव previously also invested in Sri Lanka, like in the creation of LNG terminals, in the creation of city gas distribution networks and so on. तो LNG टर्मिनल जो हमने डेवलप करने की पहले बात करी थी, दैट वाज आल्सो थ्रू द जॉइंट वेंचर, जहाँ पे लंका IOC, दैट इज लंका means the company of Sri Lanka, and the Indian IOC, so it was called as LIOC. Now this was to proceed with the LNG terminals at the Trincomalee and Kerawala Pitia. So these are the two areas of Sri Lanka जहाँ पे हम लोग LNG terminals create कर रहे हैं since 2016, and also India is creating city gas distribution network in Sri Lanka. So these are already the strategic investments done by India out there. अगर मैं जापान की बात करूं, so Japan has also heavily invested in Sri Lanka right from 1990s onwards. So China has come into the picture only very recently, you can say in the last one decade, after 2010, जब से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ है. लेकिन उसके पहले से जापान यहाँ पे इन्वॉल्व है. जापान से इन्होंने यूनिलैटरली वापस ले लिया लाइट रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, फिर ये प्रोजेक्ट भी वापस ले लिया. अब इस प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूं, सो 40% 40-year loan was provided by the Japan at a concessional interest rate of 0.1%. तो आप देख सकते हैं that the project was very much feasible, and also the majority stakeholder was Sri Lanka out here. India had only 49%. India and Japan together had 49% equity in the entire project, yet the project was taken back. So with respect to this particular project, the comments given by the India and Japan are, it is a unilateral action not expected by the Sri Lanka. So both the countries are very much upset, and they definitely again need to be looked at the lens of neighborhood first policy. This clearly signifies that somewhere we are lacking in our neighborhood first policy. We are unable to restrict the involvement of China in our own neighborhood, and this is a clear defeat of India and success of China in our own neighborhood. तो उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे. ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट जब ECT को जॉइंट वेंचर के थ्रू डेवलप करने की बात हो रही थी, सो द कैंडिडेट, द मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट आउट हियर वाज अदानी. नाउ अदानी इज ऑलरेडी बिल्डिंग अ ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब एट द विजिंगम इन केरला. सो इट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बहुत ही नियर डेवलप कर रहे हो, एंड इंडिया में जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट होता है फ्रॉम द ECT, वो प्रोजेक्ट में भी आपका एक स्टेक होल्डरशिप है, आपकी इक्विटी है ऑफ अराउंड 49%. सो दैट वुड हैव बीन अ विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर इंडिया. ऑल्सो ECT कोलंबो पोर्ट के नियर है, एंड कोलंबो पोर्ट में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा कि चाइना की एक कंपनी है जो डेवलप कर रही है, तो उसको भी हम काउंटर कर सकते थे टू एन एक्सटेंट. बट व्हेन द प्रोजेक्ट हैज़ बीन ऑल टुगेदर विड्रॉन बाय द श्रीलंका, सो वी हैव लॉस्ट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज. Now we will have to restart the negotiations again, and what Sri Lanka has offered to us is the development of West Container Terminal, but India is not very much willing to go with the West Container Terminal development, as here the development will have to be done right from the scratch.
and the strategic significance of West Container Terminal is not equivalent to that of ECT. तो यहाँ पे अब इंडिया कितना अपना इंटरेस्ट शो करती है, दैट वी नीड टू लुक इन द टाइम्स टू कम. तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है. बाकी जो बैकग्राउंड है इन द फॉर्म ऑफ इरिटेंट्स वो मैं आपको बता चुका हूँ. एंड यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम द लेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बिकॉज तभी इसका आप एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन कर पाएंगे इन द मेन्स परस्पेक्टिव, राइट. आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा, बिकॉज बहुत ही ईजी था ये अंडरस्टैंड करने में और पहले से हम इसको ट्रेस आउट करते हुए आ रहे थे. द नेक्स्ट मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड अगेन इन दी इंडियाज नेबरहुड एंड दैट इज इन दी म्यांमार. तो म्यांमार में एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज हुई है, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है. लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है और मुझे किस डेप्थ में जाके इस इशू को समझना है. सो वी डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यांमार. वी डू नॉट हियर हैव टू have a good detailed idea of the history of Myanmar. No, we just have to have a superficial knowledge of the Myanmar, its journey of transition from military rule to democracy and now again back to the military rule and the implications of the same on the India. तो हमें बस एक रफ आइडिया यहाँ से डेवलप करना है, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की इस इशू के आपको ज़रूरत नहीं है, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि म्यांमार को जब इंडिपेंडेंस मिली इन 1948, उसके बाद म्यांमार में डेमोक्रेसी कभी भी फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड हम इंश्योर नहीं कर पाए. हम मतलब इन द सेंस म्यांमार इंश्योर नहीं कर पाया. एंड लार्जली म्यांमार हैज़ रिमेन्ड अंडर द मिलिट्री रूल. सो बैक देन टिल द 90s कोल्ड वॉर चल रहा था. सो नोबडी केयर्ड मच कि कौन सी कंट्री में मिलिट्री रूल है, कौन सी कंट्री में कम्युनिस्ट रूल है, एंड सो ऑन. आफ्टर 1990 द थर्ड सेट ऑफ मिलिट्री रूल व्हेन इट वाज इम्पोज्ड इन म्यांमार इन 1990 which lasted for 2 decades, that is up till 2010. तो ये एक एरा है जब मैंने आपके साथ डिस्कस करा है कि यूएनएससी भी काफ़ी इफेक्टिव हुआ था, बिकॉज वर्ल्ड देन बिकेम यूनिपोलर. कोल्ड वॉर वॉज लार्जली इन इट्स लास्ट फेज या कंक्लूड हो चुका था, आप बोल सकते हैं, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड सो ऑन. So again UNSC became effective, and it was this particular time period when large pressure was put on the Myanmar to embrace democracy. तो उस वक्त यूएस का प्रेशर था, ईयू का प्रेशर था, यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर था ऑन द म्यांमार. इवन सैंक्शंस वर स्लैप्ड बाय few of the countries like US and European countries on the Myanmar that you need to embrace democracy and do away with the military rule. So military in 2008 came up with the new constitution. तो मिलिट्री ने जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2008 में टू गिव an appearance of transition to democracy, on the basis of this new constitution, elections were conducted for the first time on the basis of this new constitution in 2010. अब म्यांमार में लार्जली दो पार्टीज हैं, एक है एनएलडी पार्टी और दूसरी है यूएसडीपी पार्टी. Now यूएसडीपी पार्टी इज वेरी मच क्लोज टू द मिलिट्री. यहाँ पे मिलिट्री का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है. And when I talk about NLD party, so this party has a leader who is a Nobel laureate who has already got the Nobel Peace Prize. Famously is a popular leader who is Aung San Suu Kyi. So she was in the favor of full-fledged democracy in the Myanmar, and she discarded the acknowledgement of this particular constitution. तो क्योंकि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने 2010 के इलेक्शंस में फाइट करने से भी मना कर दिया. इन 2015 अनदर जनरल इलेक्शंस टुक प्लेस जिसमें एनएलडी ने पार्टिसिपेट करा. अब एनएलडी ने यहाँ पे अपना स्टैंस थोड़ा सा चेंज करा. कैसा अपना स्टैंस चेंज करा? इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस करा जिसको इन्होंने पहले डिस्कार्ड कर दिया था, जिसको ये पहले प्रो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते थे, राइट. तो उसको इन्होंने एम्ब्रेस करा, उसको एक्सेप्ट करा और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा, एंड दे केम आउट टू बी विनर. यहाँ पे एनएलडी
they won the elections. But San Suu Kyi cannot or could not become the president of Myanmar. Again because of the provisions of this particular constitution. थोड़े से आपको एक आइडिया, रफ आइडिया अगर मैं दूं उस कॉन्स्टिट्यूशन का, सो हियर मिलिट्री हैज द राइट टू नॉमिनेट 25% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जितने भी हैं उसमें से 25% मिलिट्री नॉमिनेट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. इसके अलावा सर्टेन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स like security, border, internal security, foreign policy have been retained by the military. They have not been given to the democratically elected leader or to the democratically elected government. Right? इसमें फिर एक और प्रोविजन था कि अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है म्यांमार का तो वो खुद और उसके कोई भी मेंबर, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स फॉरेन सिटीजन्स नहीं होने चाहिए. सो दिस वॉज द वन पर्टिकुलर फैक्ट जिसके कारण आंग सैन सू की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई ऑफ म्यांमार बिकॉज हर चिल्ड्रन हैड ब्रिटिश सिटीजनशिप. So she became the de facto leader. She represented one more candidate from her own party. He became the president and she became the de facto leader. Now came 2020 and this Aung San Suu Kyi, she became adamant to further lead this transition from military rule to democracy so as to make Myanmar a complete democratic country. तो 2020 में इलेक्शंस हुए, 70% टर्नआउट हुआ एंड NLD गॉट लार्जर सपोर्ट देन इट गॉट प्रीवियसली इन 2015. So she again came up as the victor और she again got और वन द इलेक्शंस इन 2020. लेकिन यहाँ पे मिलिट्री को कुछ एप्रीहेंशंस थे कि अगर NLD के पास इतना ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट होगा तो ये डेमोक्रेसी को फर्दर आगे पुश कर सकते हैं. What all we have as of now can also be taken away by amending this constitution of 2008. So they started to raise the fingers on the veracity of 2020 elections. They said that the elections were having large scale frauds. इस इलेक्शन में लार्ज स्केल फ्रॉड हुए हैं और जो भी इलेक्शन कमीशन है म्यांमार का, इट हैज़ टू प्रूव कि आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है इन द इलेक्शंस. तो ये प्रोसेस चलता रहा एंड ऑन 1st of February 2021, recently 2 days back, there was first session of the parliament to be conducted and merely 4 hours before that new session of the parliament, military rule was declared by the military general of Myanmar on the same grounds that these elections were won by the NLD party fraudulently, that is not through the fair and free means. तो इसके कारण यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया. अब थोड़ा सा इसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. दैट फॉर इंडिया इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड डेमोक्रेसी एंड हैज़ ऑलवेज restrained itself in engaging with the countries having military dictatorship, especially in our own neighborhood. So India has came out with the comment like deep concern. We express deep concern on the political development taking place in the Myanmar. Along with India, the countries like US, EU countries, even United Nations have severely criticized the actions taken by the military out there, because military not only declared the military rule but has also retained the leader of NLD, that is the Aung San Suu Kyi. But if I talk about China, so China has not even accepted or acknowledged the military rule in Myanmar which was declared by the military. China ने ये बोला है that there is an instability, political instability in Myanmar which needs to be resolved peacefully. So China has clearly given its support to the military rule in Myanmar, and this becomes problematic for India because Myanmar's military
and China has always, they both have always enjoyed good relations. And now we cannot afford another neighbor of our neighborhood going or inclining more towards China. बिकॉज अगर यहाँ पे मिलिट्री रूल फर्दर प्रोसीड करता है, चाइना उसको अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सो इट कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है वहाँ के काफ़ी सारे लीडर्स म्यांमार से ऑपरेट कर रहे हैं. And in order to restrict their influence in the northeast, we need the cooperation of the military armed forces as well, because free movement regime है in the India Myanmar border, जहाँ पे 15 किलोमीटर्स तक टू एंड फ्रो मूवमेंट आप कर सकते हैं, जिसके कारण बॉर्डर जो है वो पोरस है, जिसके कारण बहुत ईजी हो जाता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करना फ्रॉम म्यांमार. ये जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये इंडिया के अगेंस्ट में फंक्शन कर सकती है इफ इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो दिस इज वाई इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, एंड अगेन इट कैन डिस्टेबलाइज फर्दर आर नेबरहुड रीजन. तो ये बस आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करना है. नाउ यूएस इज अगेन टॉकिंग अबाउट स्लैपिंग सैंक्शंस on the military generals on the Myanmar so as to increase the pressure, ताकि जो डेमोक्रेसी के थ्रू ट्रांजिशंस चल रहा था फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स उसको कैरी ऑन किया जाए, एनएलडी को वापस पावर अज्यूम करने का एक मौका दिया जाए एंड सो ऑन. एक और छोटा सा डेवलपमेंट है जो बीच में हुआ था. व्हेन एनएलडी वन द इलेक्शंस, it was expected by India, it was expected by the entire international community कि now NLD will accelerate the process of embracing democracy. But ironically what we witnessed was कि आंग सैन सू की ने मिलिट्री रूल के काफ़ी सारे डिसीजंस को सपोर्ट किया, एंड वन ऑफ द मेजर और द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड डिसीजन वाज डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सटर्मिनेशन ऑफ रोहिंग्यास. तो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ था उसमें इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म हुआ था ऑफ आंग सैन सू की, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज एक्सपेक्टेड कि अब शायद देयर इज अ वेल कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी एनएलडी पार्टी एंड द मिलिट्री रूल एज वेल, बिकॉज जो दूसरी पार्टी है यूएसडीपी वो ऑलरेडी मिलिट्री के ही साइड में है. सो एक लौती एनएलडी पार्टी है जिससे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सपेक्टेशन थी दैट दे कैन एक्सेलरेट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट व्हेन इट ऑल्सो सपोर्टेड द मिलिट्रीज डिसीजन, मिलिट्री रूल्स डिसीजन, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न्स रेज हुए थे. बट 2020 इलेक्शंस अगेन रेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंड द रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज़ अरेस्टेड all the hopes and aspirations of the international community with respect to Myanmar. तो ये एक छोटा सा बस आर्टिकल है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है. इतना आपको समझना है क्यों जो मैंने आपको समझाया अबाउट द म्यांमार, बिकॉज ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू यूज़ इट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस इन द मेंस एग्जामिनेशन. कोई आपसे पूछता है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल का क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ऑन इंडिया, सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन इट कि इंडिया आज तक क्या सपोर्ट करता आया है, चाइना के रिलेशंस कैसे रहे हैं म्यांमार के साथ, एंड वाई वी नीड म्यांमार टू फाइट वन ऑफ आर मेजर इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, राइट. तो अभी भी उल्फा हो गया, उल्फा के अलावा एनडीएफबी हो गया, ये इसके जो कार्डर्स हैं दे स्टिल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. एनएससीएन हो गया. सो दीज you can say the insurgent groups are still active only because they have got a safe haven in the Myanmar. Okay. Okay. यूनियन बजट में एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, दैट इज दी जल जीवन मिशन अर्बन. सो प्रीवियसली द स्कीम वाज रूरल विच वाज लॉन्च्ड इन 2017, और इस बार गवर्नमेंट ने अर्बन स्कीम को लॉन्च करा है. तो इसके थोड़े से निटिग्रिटीज हम देख लेते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मेंस में आप इसको कैसे यूज़ करोगे मैं आपको बता दूंगा. सो हियर द एलोकेशन डन बाय द
union budget, through the union budget, is around 2 lakh crore, 2.8 lakh crore by 2024. Okay, and this is launched, this will be launched by the, so Swati, I already have discussed the newspaper of 4th of Feb. You can check. I already have discussed. Karan, I will address your question at the end. Okay, please be patient. Okay, so this has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Apart from this, the major objective of this mission, Jal Jeevan Mission Urban, is to provide universal coverage of water supply to all households. Now, the important thing is in all statutory towns, not in the census towns. Please try to understand this. अब इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो 31% के आसपास है, जिसमें से 26% स्टैट्यूटरी टाउन्स में हुआ है. तो जो गैप है 5% का, दिस इज और दिस 5% गैप हैज बीन देयर इन द सेंसस टाउन. तो ये जो डिफरेंस है सेंसस टाउन के बीच में और स्टैट्यूटरी टाउन्स के बीच में, इसको हमने अभी 4 फरवरी के करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी देखा था. दैट सेंसस टाउन का क्राइटेरिया जो होता है दैट इज बेस्ड अपॉन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट, 400 डेंसिटी होनी चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर. इसके अलावा मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए एंड 75% ऑफ द मेल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन should be occupied in the non-agricultural activities. If these 3 conditions are met, then we declare a particular area as a census town, that is a region having urban characteristics. But this is not a notified urban area, and so this area still is governed by the PRI, Panchayati Raj institutions. Now, an area having urban characteristics being governed by the PRI definitely is not gonna witness the much required growth and development. यहाँ पे unplanned explosive urbanization आपको देखने को मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है. That why we have experienced unplanned explosive urbanization in our country. तो ये जो जल जीवन मिशन है इट फोकसेस ओनली ऑन दी स्टैट्यूटरी टाउन्स लीविंग असाइड सेंसस टाउन. तो पहली लिमिटेशन तो आपको यहीं से मिल जाती है कि इस स्कीम में प्रॉब्लम क्या है. बेसिकली स्टैट्यूटरी टाउन्स आर ऑल दोज अर्बन एरियाज वेयर वी हैव अ नोटिफाइड ULB, अर्बन लोकल बॉडी यहाँ पे नोटिफाइड होगी तो उसको हम बोल देंगे स्टैट्यूटरी टाउन. दैट इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और टाउन कमेटी. तो इस टाइप की जो भी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, कोई भी एक अगर आपने नोटिफाई करी हुई है फॉर द गवर्नेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, सो वी टर्म दैट पर्टिकुलर रीजन एज अ स्टैट्यूटरी टाउन. इसके अलावा कोई और डेफिनेशन क्राइटेरिया नहीं है ऑफ अ स्टैट्यूटरी टाउन, राइट. तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का दैट वी नीड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज टू ऑल हाउस होल्ड्स इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स. And through this we are also trying to achieve the sustainable development goal 6.0 जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करता है. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के. उन टारगेट्स में हम प्रोविजंस भी डिस्कस करते जाएंगे. सो द फर्स्ट आइडिया है टू ब्रिज 2.68 करोड़ गैप्स इन द सेंस that there are near around these many households in the all statutory towns not being able to access clean drinking water. तो ये गैप को हमें फिल करना है. एंड वी ऑल्सो नीड टू कवर 2.64 सीवर कनेक्शंस. तो सीवर कनेक्शंस भी हमें प्रोवाइड करने हैं. ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर आपको याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बस आप क्रक्स समझते जाइए कि हम क्या यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू प्लग द गैप, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सीवर कनेक्शंस एंड सीवर कनेक्शंस, सेप्टेज कनेक्शंस इन दी 500 अमृत सिटीज.
अब जो नेक्स्ट प्रोविजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट टॉक्स अबाउट rejuvenation of the water bodies. Now this can be used by you whenever a question is being put on the water conservation and restoration activities, on the quality of water to be maintained and supplied in the cities, on drought प्रिवेंशन एंड ड्रॉट कंटेनमेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द वाटर स्कार्सिटी, ड्रॉट, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. तो जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं उनको हमें रिजुविनेट करना है ताकि सोर्सेज हमें एक्स्ट्रा क्रिएट ना करने पड़े. There are already sources in the urban areas, but we have failed to maintain them. We have failed to sustain them. And now we will be attempting to rejuvenate all those sources. So how are we going to do this? We are going to create green spaces. We are going to create sponge cities. तो sponge cities और कहाँ पे काम में आएगा? Urban flooding में काम में आएगा. Sponge cities in the sense you are gonna try to conserve and restore the wetlands जो excess water को store कर सके, filter कर सके, aquifers को recharge कर सके, ground water को recharge कर सके and so on. तो obviously you will be having sufficient availability of water which can be then provided for drinking purposes. So this has been क्लियरली इंटीग्रेटेड इनटू द जल जीवन मिशन अर्बन. तो ये आप अर्बन फ्लडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इस स्कीम को, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ड्रॉट प्रोटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं एंड बाकी जगह जो मैंने आपको बताया. ओके, हियर गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ सर्कुलर वाटर इकोनॉमी. सर्कुलर वाटर इकोनॉमी का मतलब ये है दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन द एंटायर अर्बन इकोसिस्टम ऑफ वाटर. कैसा आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि अगर आपने कोई वाटर यूज़ किया फॉर द नॉन कंजप्शन पर्पस तो आप उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकें. पॉइंट नंबर 1. फिर आप वाटर एफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज अगर आप एक बाल्टी यूज़ करते थे तो आप उसको रिड्यूस करके आधी बाल्टी यूज़ करें. सो वाटर एफिशिएंसी यूज़ प्रमोट हो रही है, वाटर रिसाइकलिंग प्रमोट हो रही है. तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे 4 आर्ट्स होते हैं जो हम वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं उनका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. रिसाइकल, रिड्यूस, रिकवर एंड रीयूज़, राइट. तो ये बेसिकली यहाँ पे अब इंटीग्रेट किया गया है. इसके अलावा अर्बन एक्यूफेयर मैनेजमेंट प्लान नाउ वुड बी क्रिएटेड बाय ईच एंड एवरी स्टैट्यूटरी टाउन. अर्बन एक्यूफेयर मैनेजमेंट प्लान. तो ये सिर्फ वाटर अवेलेबिलिटी में आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये अगेन आपकी अर्बन फ्लडिंग में भी हेल्प करेगा. बिकॉज आप इसके लिए मैपिंग करोगे. जब आप मैपिंग करोगे सो यू देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कम अप विद द बेटर ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम. वाटर का फ्लो कैसा हो रहा है, किस एक्विफेयर पे आपको बेटर फोकस करना है, किस एक्विफेयर को आपको रीस्टोर करना है. तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी. तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम. इसके अलावा जो टारगेट्स यहाँ पे सेट करे गए हैं दैट वी विल बी यूजिंग एटलीस्ट 20% of the reused water, 40% of the reused water for the industrial demand to meet the industrial demand. तो हम वाटर को रीयूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें हमने टारगेट्स भी अब फिक्स कर दिए कि जो आपने वाटर रीयूज़ करा है, रिसाइकल करा है, उसमें से 20% आपको यूज़ करना है फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाटर डिमांड. 40% आपको यूज़ करना है स्पेसिफिकली फॉर द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड ताकि आप प्रमोट कर सकें रिसाइकलिंग का कल्चर इन द अर्बन स्फीयर्स, राइट. Technology also has been introduced here, and for that technology submission for water to leverage global level technologies and expertise हमने introduce करा है. तो एक technology submission on
वाटर, तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने टेक्नोलॉजी देखा था जहाँ पे लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे गए थे, जिसको बाद में नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, हमने अभी रिसेंट में पढ़ा था कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी टू बी गिवन बाय द एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक कनाडा, फ्रांस। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी सबमिशन क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं ऑफ द कंट्रीज लाइक इजराइल, जर्मनी, जो गंगा रिवर पॉल्यूशन में हमारी हेल्प कर रही है। तो ये ऑलरेडी आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसको अब आप अर्बन स्फीयर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी सबमिशन जो अब इसको इंटीग्रेट किया गया है इन द जल जीवन मिशन अर्बन। देन देयर वुड बी एन अवेयरनेस कैंपेन, ताकि लोगों को आप इंसेंटिवाइज कर सकें, नच कर सकें, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें एज टू हाउ दे कैन मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मोर एफिशिएंट, राइट। तो आईईसी कैंपेन्स यहाँ पे रन करेगी गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन्स। इसके अलावा पेय जल सर्वेक्षण यहाँ पे इंक्लूडेड है, पेय जल सर्वेक्षण। So through this we will be attempting equitable distribution, reuse of water and mapping up of water bodies. So this is the पेयजल सर्वेक्षण। डुअल पाइपिंग सिस्टम हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक और यहाँ पे जो कंपोनेंट है ऑफ द जल जीवन मिशन अर्बन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि जो जल जीवन रूरल मिशन था वो कहाँ पे फेल हुआ। तो वो दो जगह पे फेल हुआ, मतलब फेल इन द सेंस उसके लिमिटेशंस अगर हमें बताने हो तो दो मेजर लिमिटेशंस है, पूरा मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन दो मेजर लिमिटेशन ऑफ द जल जीवन रूरल मिशन जो 16-17 में लॉन्च किया गया था। एक तो उसका टारगेट हमने सिर्फ 34% अचीव किया है टिल नाउ, सिर्फ 34% हम अचीव कर पाए। सो दिस हैज़ बीन मेजर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ऑल द फ्लैगशिप स्कीम्स। इफ़ यू सी, हमने नमामि गंगे देखा, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, स्वच्छ भारत मिशन में यही प्रॉब्लम है, उसके बाद आप जल जीवन मिशन देख रहे हैं, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि हम टारगेट्स एम्बिशियस बनाते हैं और उसको फिर हम अचीव नहीं कर पाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, maybe because of delays in the implementation of the projects which further lead to the cost overruns and so on। तो ये मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वाटर में एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं स्लिपेज की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्लिपेज। तो ये प्रॉब्लम्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्लिपेज। स्लिपेज का मतलब ये होता है वंस यू हैव एंश्योर्ड अ फंक्शनल टैप इन अ हाउस होल्ड, तो आप उस हाउस होल्ड को फिर काउंट करना स्टार्ट कर देते हो that now this household has been covered, but after 1 year or 2 year you will find that that household's tap which should have been functional, it is not functional। टैप है लेकिन उसमें से पानी नहीं आ रहा है, क्यों? बिकॉज दैट हाउसहोल्ड हैज स्लिप्ड बैक बिकॉज ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ द वाटर रिसोर्स। जो वाटर सोर्स है वो सूख गया, दैट हैज ड्राइड अप। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंश्योर करा है कि हम अर्बन एक्यूफेयर मैपिंग प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हम यहाँ पे रेस्टोरेशन करेंगे, रिजुवनेशन करेंगे ऑफ द वाटर बॉडीज एंड सो ऑन, सो एज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ स्लिपेज जो जल जीवन मिशन रूरल में मिसिंग है, राइट। तो ये एक डेवलपमेंट है ओवर एंड अबव द जल जीवन रूरल मिशन, एंड वी आर हियर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ स्लिपेज, दैट इज households which have got the functional tap but are not able to use the clean drinking water mainly because of the drying up of the source। वो जो सोर्स है वो सूख गया है, वहाँ पे पानी नहीं है, राइट। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो इस स्कीम में है, बजट में लॉन्च हुआ है। बाकी बजट मुझे आपके साथ करना है, पेंडिंग है, आई नो। मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे को मैं आपके साथ एक डिटेल सेशन लूँगा ऑन द बजट, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। आज काफ़ी आर्टिकल्स हैं वैसे बजट के, सारे आर्टिकल्स मैं डिस्कस नहीं करूँगा इन डेप्थ बिकॉज आई ऑलरेडी विल बी डूइंग दैट विथ यू। एक आंसर में इन द पार्लियामेंट गवर्नमेंट हैज सेड दैट 340 डेथ्स took place in India in the year in the past 5 years in India due to manual scavenging। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा मैंने एम्फोसाइज करा है आप लोगों के साथ, एंड पूरा डिस्कस तो नहीं करूँगा, एक रफ फ्रेमवर्क मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर हमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करनी है, सो वी विल स्टार्ट टू ट्रेस इट फ्रॉम 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसमें हमने अनटचेबिलिटी को लिंक किया था टू द मैनुअल स्कैवेंजिंग,
इसके बाद इन द 1993 वी केम अप विद अ डेडिकेटेड टूल टू फाइट विद द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जहाँ पे हमने मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट बनाया था इन 1993। इसके बाद हमने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बनाया टू गिव रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, मॉनिटर द कंप्लायंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अफोरमेंशन्ड एक्ट एंड सो ऑन। इसके बाद गवर्नमेंट ने 2013 में एक अमेंडमेंट किया इन द 1993 एक्ट, एंड देन वी केम अप विद द prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation. लेकिन still we have not been able to eliminate the problem of manual scavenging from India, mainly because of certain reasons. जो मेजर रीजंस हैं, सबसे मेजर रीजन, सारे रीजंस डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, जो मेजर रीजंस हैं दोज आर दिस, इट इज़ अ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। और क्योंकि ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है तो बहुत डिफिकल्ट होता है सोसाइटी को नच करना, दैट यू रेस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम एम्प्लॉइंग लोअर कास्ट पीपल इनटू मैनुअल स्कैवेंजिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी इन एक्ट्स के फेलियर को शो करती है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है लो कन्विक्शन की, जीरो कन्विक्शन रेट है एज ऑफ नाउ, कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ है अंडर 2013 एक्ट एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट जो 1993 का एक्ट था उसको भी कैग ने ऑब्जर्व करा था, असेस करा था, और कैग ने भी यही रिकमेंडेशंस दिए थे कि इसका जो यूटिलाइजेशन रेट है वो बहुत ही निल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कोई भी कन्विक्शन नहीं हो रहा है इसमें, देर इज जस्ट द एक्ट ऑन द स्टैच्यू बुक्स, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द ग्राउंड। देन लो कन्विक्शन के बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम नेक्स्ट है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। आप मशीन्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे हो फॉर द वर्क ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ मशीन्स there is also the problem of inadequate availability of protective gear। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी बनाया था that even if you have to employ an individual as a manual scavenger, then you cannot do it until and unless you provide that individual protective gear। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है देन यू शुड बी हेल्ड और यू विल बी हेल्ड लायबल एंड यू विल बी आस्क्ड टू पे द एंटायर कॉम्पनसेशन। लेकिन इस जजमेंट को भी फॉलो नहीं किया गया और ना ही प्रोटेक्टिव गियर हम प्रोवाइड करते हैं और ना ही हम मशीन्स का एम्प्लॉयमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस। तो there are structural errors in the design of the septage tanks in a country। तो जहाँ पे हम चाहकर भी मशीन्स का डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, there we are forced to employ these individuals as manual scavengers। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ वर्क। तो क्योंकि इस वर्क को सबलेट कर दिया जाता है, अब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने इस टास्क को सबलेट कर दिया है टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो गया है इस वर्क का। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्टर्स कि वो मशीन यूज़ कर रहा है कि वो मैनुअल स्कैवेंजर्स यूज़ कर रहा है, बिकॉज द अकाउंटेबिलिटी नाउ रेस्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड नॉट विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नॉट ऑन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्योंकि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया है, राइट। तो ये कुछ मेजर यहाँ पे लिमिटेशंस हैं जिसके कारण हम आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट नहीं कर पाए। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। जब तक सोसाइटी के आप बिहेवियरल नजिंग नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर पाओ, राइट। इसके अलावा अगर आपको कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स को फिल करना है तो आप इनकी नेगोशिएटिंग पावर की बात कर सकते हैं दैट देयर इज़ नो ट्रेड यूनियन टू रिप्रेजेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स, देयर इज़ नो प्रॉपर लिंकेजेस, इफेक्टिव लिंकेजेस बिटवीन द मैनुअल स्कैवेंजर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड द अथॉरिटीज़ एट द ग्राउंड जो इनकी बातों को सर्कुलेट कर सके, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देयर इज़ लैक ऑफ द नेगोशिएटिंग पावर और द बार्गेनिंग पावर ऑफ दीज मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया। स्केल ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग को समझने के लिए आपके पास फैक्ट है that according to the census of 2011 around 1.8 lakh families
आर डिपेंडेंट ऑन दी मैनुअल स्कैवेंजिंग काइंड ऑफ वर्क। और डेथ्स कितनी हो रही हैं आपको पता है, अभी पार्लियामेंट में आंसर किया है गवर्नमेंट ने, 340 डेथ्स लास्ट 5 ईयर्स में हुई हैं। इसके वे फॉरवर्ड पे अगर आपको फोकस करना है तो वे फॉरवर्ड में यू विल टॉक अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजर्स अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंश्योर करना है कि मैंडेटरी बनाए प्रोटेक्टिव गियर को, कंपल्सरी बनाए मैकेनाइजेशन को, अनलेस सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड और अनलेस सर्कमस्टांसेस डिमांड अदरवाइज। अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नहीं है सेप्टिक टैंक्स में तो आप ठीक है, अगर मतलब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं तो आप ठीक है, आप एम्प्लॉय कर सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी इट शुड बी मेड दैट आपको मशीन्स का यूज़ करना है। इसका एग्जांपल आपके पास हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी का है जहाँ पे जेटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। केरला में भी रोबोट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने अब। सो दीज आर सम ऑफ दी टेक्नोलॉजिकली बेस्ड न्यू इनोवेशंस एंड अप्रोचेस which can be used as a best practice by the other state and the other urban local bodies as well. And on the implementation part यहाँ पे ensure करना है protective gear, mechanization, सिविल सोसाइटी एनजीओ का लिंक गवर्नमेंट को ही इंश्योर करना पड़ेगा ताकि इनके जो राइट्स हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स के उनको प्रोमोट किया जा सके और अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट भी किया जा सके। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे मैनुअल स्कैवेंजिंग के, क्विक रिवीजन अगर करना है तो, बाकी डिटेल में हमने इसको देखा ही है पहले भी, राइट। ओके, दिस आर्टिकल इज अगेन फ्रॉम द बजट। तो अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट ने, एक मैंने आपको बताया कि जल जीवन मिशन लॉन्च करा है अर्बन, जो इम्पोर्टेंट है, फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अर्बन मोबिलिटी पे काफ़ी एम्फोसिस दिया है। अर्बन मोबिलिटी में गवर्नमेंट हैज़ टॉक्ड अबाउट providing central funding to the ongoing metro projects in the cities like Kochi, Chennai, Bangalore, etc. And apart from that, tier 2 में भी गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट शुड कम अप। और क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, so government has come up, has advised the two new technologies that can be adopted. Those are metro light and metro new technologies, जो रिलेटिवली चीप होती हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इजी टू रोल आउट होती हैं। तो टीयर 2 सिटीज़ में आप मेट्रो न्यू, मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ट्रांजिट सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की बात करी है गवर्नमेंट ने। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू सिटीज़ डेवलप करने की बात करी है। एक्चुअली ये जो बात है ये फाइनेंस कमीशन ने करी है। दिस हैज़ बीन गिवन बाय दी दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन कि आपको न्यू सिटीज़, 8 न्यू सिटीज़ डेवलप करनी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो दीज वुड बी ग्रीन फील्ड सिटीज़ एंड दे शुड एक्ट एज अ मॉडल फॉर द अर्बनाइजेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे आप ये 8 न्यू सिटीज़ कहाँ क्रिएट करोगे? इन दी आउट ग्रोथ एरियाज और इन दी सेंसस टाउन। तो अर्बन एरियाज बेसिकली इंडिया में 3 तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है आउट ग्रोथ, एक होता है सेंसस टाउन और एक होता है स्टैट्यूटरी टाउन। ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ। आउट ग्रोथ एरियाज आर द पेरिफेरल एरियाज ऑफ अ पर्टिकुलर अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ एन अर्बन एपिसेंटर। जो भी उसका पेरिफेरल एरिया होता है दैट इज द आउट ग्रोथ एरिया, जहाँ पे एक विलेज आके मर्ज करता है। सो दैट ट्रांजिशन एरिया इज कॉल्ड एज द आउट ग्रोथ एरिया, जहाँ पे यू आर इजीली एबल टू विटनेस गुड रोड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वेल ड्रेनेज सिस्टम एंड अदर काइंड ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज। तो ये जो अर्बन एम्यूनिटीज आपको पेरिफेरल एरिया में दिखती हैं, दोज आर द आउट ग्रोथ एरिया एंड दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द एरियाज हैविंग अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ आवर कंट्री। तो ये 3 एरियाज हैं हमारे देश में जिनको हम अर्बन एरियाज बोलते हैं। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि आपको 8 नई सिटीज क्रिएट करनी है इन द आउट ग्रोथ एरियाज और इन द सेंसस टाउन्स। बाकी एक मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक बार ये आर्टिकल पिक कर लूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस नहीं हो रहा है।
ओके, एक और अच्छी बात है यहाँ पे दैट मैंने आपसे अभी डिस्कस करा था फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बारे में। तो जहाँ पे ग्रांट्स एंड एड्स की हमने बात करी थी, सो देयर फाइनेंस कमीशन हैज सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड द ग्रांट्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स, बोथ अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड द PRIs। तो यहाँ पे जो सब्सटैंशियल इंक्रीज है वो 78% इंक्रीज है फॉर द ULB। अगर फिगर याद रखना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई ऐसी बड़ी बहुत बात नहीं है। बट हियर द कंडीशंस हैव बीन अटैच्ड नाउ। ULBs will be able to get this fund only when their annual accounts are put in the public domain, ताकि उसका असेसमेंट किया जा सके बाय द सिविल सोसाइटी एंड दी NGOs एज वेल। तो अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स अपने अकाउंट्स को पब्लिक डोमेन में रखते हैं एंड दे स्टार्ट टू एनहांस द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो उनको ये फर्दर ग्रांट्स मिल सकती हैं। ये फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है एंड दिस शुड बी डेफिनेटली रिमेंबर्ड बाय यू, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एटलीस्ट पिछले 4-5 साल से इज एम्फोसाइजिंग ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो मेजर प्रॉब्लम है वो फंड्स की होती है। हालांकि 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज़ की, लेकिन फंक्शंस और फंक्शनरीज भी अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो बिना फंड्स के वो इनफेक्टिव हैं, देयर इज़ नो पर्पस। सो द मेजर प्रॉब्लम रेस्ट विद द फंडिंग, उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम बात करते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की फॉर द अर्बन एरियाज एंड सो ऑन। Economic survey for long has been emphasizing that urban local bodies should tap the potential of property tax. And now when you have the technology, so through the use of GIS, GPS, you can easily map out the property and tax them. तो इससे एक तो जो लैंड टाइटलिंग इश्यूज होते हैं जिसके कारण जुडिशरी पे बर्डन आता है वो भी सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर डेटा मेंटेन रहेगा। क्योंकि आपके पास डेटा मेंटेन्ड है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स भी क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ने आई थिंक 17 में दिया था, दैट वाज ऑफ पुणे सिटी। पुणे सिटी की अर्बन लोकल बॉडीज आर हाईली एफिशिएंट इन गेटिंग दी प्रॉपर्टी टैक्स। तो अगर आपको एग्जाम्पल कोट करना है तो दैट शुड बी द पुणे। अदरवाइज यहाँ पे वही बात इकोनॉमिक सर्वे ने बोली थी, सॉरी फाइनेंस कमीशन ने बोली है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर सिटीज़ एनहांस करती हैं तो उन्हें ये एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज उन्हें एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं मिलेगी। सो काइंड ऑफ इंसेंटिवाइजेशन फॉर दी ULBs एज वेल, बिकॉज फाइनेंस कमीशन ने परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स भी इंट्रोड्यूस करी हैं इस बार फॉर दी स्टेट्स। सो ऑन द सिमिलर लाइन्स इट हैज़ इंट्रोड्यूस दीज परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स फॉर द ULBs जो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स जब हम बजट डिस्कस करेंगे तो एक बार और दोबारा डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, दिस अगेन इज फ्रॉम द बजट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द बैड बैंक कि गवर्नमेंट हो सकता है बैड बैंक प्रपोज करे। वाई? बिकॉज RBI सेड कि इन इट्स वाइट पेपर दैट NPAs in India are to be substantially increased mainly because of the COVID-19 and lockdown. कितना इंक्रीज? फ्रॉम 7.5% to around 13%. So in order to tackle this huge increase in the NPS, we should have a dedicated institution in the form of bad bank. So government finally has introduced ARC, Asset Reconstruction Company, which is a bad bank. लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना would not be a right डिसीजन। बैड बैंक को हमने ऑलरेडी डील करा है। बैड बैंक के हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क है कि बैड बैंक क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लूप होल्स क्या हैं। अब सिर्फ एक चीज़ बचती है कि जो गवर्नमेंट ने ARC प्रपोज करा है इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसमें गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज करा है, राइट। तो बस हमें अपने पूरे फ्रेमवर्क में इसके प्रोविजंस को फिल करना है। एंड हियर इफ वी टॉक अबाउट ARC जो गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है, सो गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू बी एन इक्विटी होल्डर ऑफ द ARC। गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि हम इस ARC के इक्विटी होल्डर नहीं बनेंगे। दिस शुड बी ब्रॉट अप बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बाकी इसके जो प्रोविजंस आएंगे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो हम इसको फर्दर अपडेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने पहले बैड बैंक के बारे में पढ़ा था कि बैड बैंक का मेजर फ़ायदा क्या है, तो बैड बैंक का मेजर फ़ायदा ये है कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बैंक की वो ईज डाउन हो जाएंगी, क्रेडिट लेंडिंग विल बी इंक्रीज्ड एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन कैन देन बी अरेस्टेड एंड इवन रिवर्स्ड।
सेकेंड मेजर बेनिफिट, एनपीएस को डील करने के लिए यू विल बी हैविंग अ डेडिकेटेड एजेंसी विच विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ एनपीएस, बिकॉज अभी जो बैंक्स हैं वो इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड मेजर्स के थ्रू एनपीएस को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो ये कुछ बेसिक फायदे हैं बैड बैंक के। नुकसान क्या है, यू आर बेसिकली शिफ्टिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम वन एजेंसी टू द अनदर एजेंसी एंड आर नॉट ट्राइंग और अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व द इशू फ्रॉम इट्स रूट्स। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसके कारण एनपीएस क्रिएट होते हैं उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम थी कि आप इतने सारे फाइनेंसेस कहाँ से लेके आओगे कि एक बैड बैंक ये लोन्स को परचेज कर ले फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पीएसबीज और द प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे वो जो इशू है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का वो दूर होता हुआ दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि एक तो हम इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बन रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। सेकेंड, यहाँ पे कैसे परचेज करेगा एक बैड बैंक एआरसी एनपीए को फ्रॉम द बैंक्स, उसमें यहाँ पे सजेस्टेड है दैट 15% कैश होगा और 85% के अगेंस्ट में सिक्योरिटी रिसीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। तो वो सिक्योरिटी रिसीट्स जो है बैंक आगे फर्दर उसके थ्रू कोलैटरल के थ्रू लोन्स प्रोवाइड कर सकता है, उनको ट्रेड कर सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 85% आपने सिक्योरिटी रिसीट्स प्रोवाइड करी हैं, यू बेसिकली हैव एस्केप्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन बिकॉज आपने सिर्फ सिक्योरिटी रिसीट्स प्रोवाइड कर दिया, आपने कोई कैश तो प्रोवाइड करा नहीं है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो बैंक को 15% कैश मिल गया, थोड़ा बहुत राहत मिल गई एंड द मेजर बेनिफिट इज़ कि बैंक को यहाँ पे प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट में ईजी होगा, तो क्रेडिट ऑफ टेक इंक्रीज हो सकता है, राइट। बाकी इस आर्टिकल पे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करी है, तो दिस ऑल्सो वी सॉ एज एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग अगर बैंक से हो तो वो एक सही ऑप्शन नहीं है। वी ऑलवेज हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ऑफ द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स विच tends to create asset liability mismatches in the longer run and then subsequently NPAs are created. So we always have talked about alternative financing mechanisms for the infra projects, जहाँ पे we have talked about NIIF, tapping the pension funds, insurance funds which also have the long liability. Apart from that, we have talked about deepening and expanding the corporate bond market. तो इस बार बजट में इस पर उसको भी एड्रेस किया गया है एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन दैट इज द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट ने इसको भी प्रपोज कर दिया है कि हम इसको क्रिएट करेंगे। इसकी कॉर्पस वैल्यू 5 लाख की होगी इन द नेक्स्ट 5 years एंड दिस विल बी प्रोवाइडिंग मच रिक्वायर्ड फंडिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द लॉन्ग जेस्टेशन फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, राइट। तो इससे बैंक्स भी फ्री हो जाएंगे, बैंक्स उस कैपिटल को कहीं और यूज कर सकते हैं इन द डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, ये छोटा सा आर्टिकल है, आप इसको यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन द बायलैटरल रिलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंटरनल सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, इन द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द सीज फायर वॉयलेशंस। सीज फायर वॉयलेशंस 3 कारणों से होती है, मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। द फर्स्ट रीजन इज to facilitate infiltration, second reason is to internationalize the issue, and third reason is to check the armory or arms and ammunition of the Indian armed forces. तो ये 3 मेजर रीजन होते हैं जिसके कारण सीज फायर वॉयलेशंस पाकिस्तान करता है और इस बार 48% इंक्रीज हुआ है सीज फायर वॉयलेशन। इसको आप इंडिपेंडेंटली रीड नहीं करेंगे, यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट विद द रीसेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स दैट वी सॉ, जहाँ पे हमने देखा था कि मिलिटेंसी जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीज हुई है बाय 22%, राइट। नंबर ऑफ एनकाउंटर्स इंक्रीज हुए हैं इन द लास्ट 3 years itself, अराउंड 600 मिलिटेंट्स हैव बीन गन डाउन इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारे फैक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू असेस द सिचुएशन ऑफ Jammu and Kashmir, role, measures taken by the government of India so far in the Jammu and Kashmir and so on. ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। Okay, now here comes the topic of uniform minimum age of marriage. So a petition has been filed in the Supreme Court which talks about providing uniform age of marriage for both men and women. तो
देखिए, दो इश्यूज दोनों अलग हैं, आप कंफ्यूज ना हो, बस इसीलिए मैंने इस इशू को पिक करा है आज, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया, तो उसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है दैट यू वांट टू एम्पावर फर्दर वुमेन एंड देयर बाय और सब्सिक्वेंटली यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द सोशल इंडाइजेस ऑफ द कंट्री, because most of the social indices are directly derived from the women, her reproductive rights, her economic independence, her literacy levels and so on. अगर women एम्पावर्ड है तो आने वाला बच्चा भी एम्पावर्ड है, न्यूट्रिशनली वेल एड्रेस्ड है एंड सो ऑन। लेकिन अगर विमेन खुद ही एम्पावर्ड नहीं है तो पूरा सोशल डेमोग्राफी आपकी डिसबैलेंस हो सकती है कंट्री की। दूसरा रीज़न है यहाँ पे दैट यू वांट टू प्रोवाइड uniform parity or you want to ensure that article 14 also applies on the legal age of marriage। अभी एज ऑफ मैरिज कितनी है, विमेन की 18 है, मेन की 21 है। सो यू वांट टू इक्वलाइज दैट सो एज टू एंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्म मिनिमम एज ऑफ मैरिज। लेकिन इसमें हमने एक इशू देखा था, अगर आप लीगल एज ऑफ मैरिज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इंक्रीज करते हो कि आपको विमेन एम्पावरमेंट करना है, सोशल डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आपको कंट्री के इंक्रीज करने हैं, लाइक एमएमआर आपको रिड्यूस करना है, आईएमआर आपको रिड्यूस करना है, बेटर न्यूट्रिशन आपको अचीव करना है, देन यू वांट मोर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द ओवरऑल फीमेल लेबर वर्कफोर्स ऑफ योर कंट्री, you want better reproductive rights, you want to prevent the early child or early pregnancies, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको अगर टैकल करना है तो ठीक है, आप इंक्रीज कर सकते हैं लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज थे। लेकिन अगर आप एज की पैरिटी की बात करते हैं कि वाई देयर इज दिस डिफरेंस, एज सेम होनी चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द फेमिनिज्म कॉन्टेक्स्ट, सो आई ऑलरेडी हैव वॉर्न्ड यू कि फेमिनिज्म को प्लीज़ यहाँ पे मत इंक्लूड करिए बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। फर्स्ट इज हाउ यू कैन इंश्योर पैरिटी। आप 21 को रिड्यूस कर सकते हो और इसको 18 पे लेके आ सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या होगी, हाइपरगैमी की प्रॉब्लम होगी, चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज हो जाएंगी, राइट। और क्योंकि अब जल्दी मैरिजेस आपने अलाउ कर दी तो इससे बाकी सारा जो सोशल डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, अर्ली मैरिजेस होंगी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज हो जाएंगी, एमएमआर इंक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन, अर्ली अबॉर्शंस, अर्ली प्रेगनेंसी, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगी, रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं मिलेंगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, विमेन ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगी एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ पे लेके आते हो और विमेन की एज को 21 कर देते हो, सो अगेन यू हैव इंश्योर्ड द पैरिटी। लेकिन अब यहाँ से क्या इश्यूज़ हैं, तो यहाँ से जो इश्यूज़ हैं वही इश्यूज़ यहाँ से भी हैं कि लीगल केओस और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब आपके स्टैच्यूज़ में चाइल्ड मैरिज की डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन 18 साल है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो गिवन द परमिशन टू फॉर्म फिजिकल रिलेशनशिप एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की परमिशन 18 ईयर्स की है और मैरिज करने की परमिशन 21 आपने कर दी, तो बीच में जो 3 साल का गैप है इसके कारण सोसाइटल इंस्टेबिलिटी किस हद तक क्रिएट होगी यू कैन ईजिली इमेजिन। ऑल्सो दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ प्यूनिटिव पेट्रोलिज्म स्पेशली अगेंस्ट द कपल्स और द एलोपिंग कपल्स। then you are again attempting to deprive women her bodily rights, her liberty till the age of 21, because in our country women are generally controlled because of the patriarchal outlook of a society by the मेल काउंटर पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। तो ये जो कंट्रोल है ये एक्सटेंड हो जाएगा टू दी 21 ईयर्स ऑफ एज, और ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप एज जो है वो वही रहने दो। ऑलरेडी सोशल इंडाइसेस इंडिया में इम्प्रूव हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे आप फोकस करो, इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ पे आप फोकस करो, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस ऑफ वुमेन टू दी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, उस पर आप फोकस करो रादर इंक्रीजिंग द एज और प्लेइंग विद दीज नंबर्स, राइट। ओके, ये 2 आर्टिकल्स मैं आपके साथ आज डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपके सेल्फ रीडिंग के लिए हैं। टेलीग्राम के चैनल प्रेप नट्स पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, मतलब शेयर करा हुआ है ये आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स, बोथ द आर्टिकल्स ऑन द बजट।
सो बजट में इस बार क्या चेंज किया गया अप्रोच के रिस्पेक्ट में, उस पर बात करी गई है। तो मैं आपके साथ ऑलरेडी बजट डिस्कस करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल वी विल डिस्कस। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एक ये आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं है, डेटा पॉइंट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जुडिशरी के रिस्पेक्ट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे थे। सिर्फ 2 विमेन जजेस हैं, एक भी सीजीआई विमेन जज नहीं है आज तक, और 29% हाई कोर्ट्स में कोई भी विमेन जज नहीं है। इसके अलावा सीनियर काउंसिल सिर्फ 17 अवेलेबल हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है बोथ एट दी जज लेवल एंड एट द लॉयर लेवल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जुडिशरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेटा पॉइंट के थ्रू बताई गई हैं, लाइक दैट ऑफ वैकेंसीज। 38% वैकेंसीज हैं इन द हाई कोर्ट। एवरेज पेंडेंसी इन आर इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज दैट ऑफ 2 years, राइट। तो यही सारे फैक्ट्स यहाँ पे दोबारा रिपीट किए गए हैं। तो क्विक रिवीजन के लिए अगर आप चाहते हो तो एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज देर इज नो सच नीड, राइट। किसी को कोई डाउट है यू कैन डिस्कस इट विथ मी, अदरवाइज वी विल कॉल इट डे। Ashutosh, I think I have answered your question that if we have machines then why we use manual scavenging. एक तो मशीन्स खरीदने की कैपेसिटी फंडिंग के टर्म्स में नहीं होती है यूएलबीज की, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं हमारे सेप्टेज टैंक्स में, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। क्योंकि यहाँ पे कास्ट अटैच्ड है तो लोग उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है, दे अज्यूम दैट दिस इज द वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट एंड दे विल डू इट, वाई टू गो फॉर द मशीन्स। So this outlook of the society has to be changed first if you need to eliminate the problem of manual scavenging in our country. सी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज अभी अगर आप देखोगे तो ऐसे आप असेस नहीं कर पाओगे कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही पूछा गया है। अब अगर ऐसे पिन पॉइंट करना है तो एनी क्वेश्चन आई कैन टर्म इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। कोई भी आप अब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप गूगल करो प्रेसिडेंट इन न्यूज़, तो प्रेसिडेंट इन न्यूज़ हमेशा रहता है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी असेस नहीं करना चाहिए कितना वेटेज है करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में या मेंस में। करंट अफेयर्स को आप बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड कर दिया है यूपीएससी ने। यूपीएससी क्या कर रहा है देखिए, आप प्रीलिम्स में देखिए और मेंस में भी देखिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक फ्रेम करेगा यूपीएससी, उसमें एक पॉइंट स्टैटिक होगा, एक पॉइंट करंट अफेयर्स से होगा, फिर एक स्टैटिक होगा। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स फ्रेम हो जाएंगे, आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने पता है करंट अफेयर स्टैटिक सब कुछ, तो ओनली देन यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। हाँ, सर्टेनली देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स से होते हैं, लाइक ऑन द स्कीम, लाइक ऑन एनी जीआई टैग, आर्ट फॉर्म जो अभी न्यूज़ में है, जैसे अभी हमने पढ़ा थांगटा और कलारिया पट्टू। अगर हो सकता है इन पे क्वेश्चन आ जाए तो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स से हो जाएगा, राइट। लेकिन जो यूपीएससी ने नई अप्रोच डेवलप करी है कि वो ब्लेंड कर रहा है अब करंट अफेयर्स और स्टैटिक को। इसी तरीके से मेंस में आप देखिए कि क्वेश्चन जो फ्रेम होता है मेंस में, उसमें स्टैटिक की डिमांड भी है और करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन भी है। तो इस अप्रोच को आपको लर्न करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना है इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ योर्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप आइसोलेटेड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। सो शुड वी कॉल इट अ डे, कंक्लूड करें आज का सेशन। Okay. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.